Okay, are you able to view the screen? Yes? Okay. So today we'll be doing the eighth practical, which is implement using TensorFlow. And so it's basically the basics of TensorFlow, how to work with TensorFlow and so on. You don't particularly have to do the third practical, but you just need to have a very basic understanding of TensorFlow 2. Okay. So we have two different TensorFlow here, TensorFlow 1 and TensorFlow 2. Okay. But we need to learn TensorFlow 2 because it is the latest one, and everyone eventually will have to migrate from TensorFlow 1 to TensorFlow 2. Okay. So in order to learn TensorFlow, the best way to go about it is going to tensorflow.org/tutorials. Okay. तो पूरा TensorFlow का documentation है TensorFlow की website पे ही. Okay. And we start with the beginner's guide. Okay. And it has in-depth tutorials available for us to learn from. Okay. So we'll simply go to beginner quick start, right? And if we go here, this is the quick start beginner tutorial that we have for TensorFlow 2. Okay, we can simply click on run in Colab. So it will open up a Colab file for that particular tutorial. Right, so now we have a Colab file on our hands for this beginner tutorial for TensorFlow 2. Now, before we learn TensorFlow 2, we need to understand that TensorFlow uses the Keras library as its backend. Okay, so just like we have been learning sklearn. Just like we have been learning sklearn, we also need to get a brief understanding of Keras. कोई पीसी में प्रॉब्लम कोई इशू? Okay, so for neural networks, sklearn is a general machine learning library. Okay. But for neural networks, Keras is the best library available for beginners, right? And we have three main libraries for deep learning and for neural networks, and those are TensorFlow, PyTorch, and Keras. Okay, and TensorFlow uses Keras as its backend library. Okay, so without further ado, let us start with this Keras. So this is actually a very short introduction to Keras. Right, the first thing we need to do is import TensorFlow as TF. So let me zoom in a little. Okay, so now the first thing that we'll do is we'll import TensorFlow as TF and print the version of the TensorFlow that we are using. Okay, so the TensorFlow version that we are using is 2.8.0. The next thing we need to do is we need to load a particular data set. Okay, so here we are using the MNIST data set. So MNIST is the handwritten digits data set. Okay, and it is one of the most common data sets available in machine learning. Right, it is an image data set of 28 cross 28 images. Okay, of handwritten digits going from 0 up till 9, 0, 1, 2, 3 and up to 9. Okay, and usually the task associated with this is to recognize which digit is the image. Okay, so classification करना होता है usually ये data set का use करके. अब ये data set already available है TensorFlow के Keras data sets के अंदर. So what we are doing, we are saying MNIST equals to TensorFlow.keras.datasets.mnist.
सिंपल। तो ये प्री बिल्ट डेटा सेट है जो पैकेज के साथ ही आता है, टेंसरफ्लो और केरस के पैकेज के साथ ही आता है। तो सीधा सीधा उसको लोड कर दिया इन द MNIST ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ओके, देन व्हाट आर वी डूइंग? वी आर सेइंग x train y train x test y test इक्वल्स टू MNIST डॉट लोड डेटा। तो क्या कर रहे हैं हम? एसेंशियली टपल्स क्रिएट कर रहे हैं। x train y train का टपल क्रिएट किया, x test y test का टपल क्रिएट किया। ओके, और MNIST का जितना भी डेटा है उसके अंदर लोड कर दिया। Here x will be images and y will be class. Okay, so there are 10 classes since there are 10 digits. Okay, 0 1 2 3 up to 9. So y will be 0 to 9, which is 10 classes, and x will be images which are 28 cross 28 pixels. Okay, and these MNIST images are grayscale images, therefore we only have one channel. Okay, so it is 28 cross 28 cross 1. Okay, अगर कलर इमेज होते हैं, if it was color images, then we would have 28 cross 28 cross 3. So that 3 would be for RGB, red, green and blue. Okay, so अगर कलर इमेज है तो 3 चैनल रहेंगे RGB। अगर ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल इमेज है तो खाली एक ही चैनल रहेगा। Okay, so now we don't need to actually mention 28 cross 28 cross 1. Okay, if we are simply mentioning it, we can simply mention it as 28 cross 28. So it is understood that it is a grayscale image. Okay, then the next line what we are doing, we are saying x train x test equals to x train divided by 255, x test divided by 255. Okay, so what is this doing? 255 is the maximum pixel intensity value. Okay, 255 is the maximum pixel intensity value. तो यूजुअली इमेजेस होते हैं और हर एक पिक्सल में 0 से लेकर 255 तक वैल्यू रहती है हर एक पिक्सल की। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? सारे पिक्सल्स को डिवाइड बाय 255 कर रहे हैं। ओके, वी आर डिवाइडिंग बाय मैक्सिमम वैल्यू फॉर ऑल पिक्सल्स। तो इससे क्या होगा? द डेटा विल बी इन द रेंज फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 के रेंज में आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स वी आर नॉर्मलाइजिंग और स्टैंडर्डाइजिंग अवर डेटा। एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस? वी डू दिस सो दैट, yes, please pay attention. Why are we doing this? We are doing this so that big numbers do not affect our algorithm. Okay, सारे पिक्सल्स की वैल्यू जो है रेंज बिटवीन 0 से 1 आ जाएगी तो कैलकुलेशंस में इजी हो जाएगा। Therefore, all the x train and all the x test are divided by 255 in order to standardize or normalize our data. So let us run this. Okay, so first of all it is actually downloading the data. तो आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहोगे तो ये वाला लाइन वर्क नहीं करेगा। ओके, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट दिस लाइन विल नॉट वर्क। ओके, नॉट दिस लाइन डॉट लोड डेटा वाला। तो लोड कर रहा है वो कहाँ से लोड कर रहा है? इंटरनेट से लोड कर रहा है। ओके, नाउ लेट मी ऐड a code block here. I want to see the size and shape of x train. Okay, so let me see x train dot shape. So you can see that there are 60,000 images in x train. Each image is 28 cross 28. Okay, if I do the same thing for x test, so 10,000 images, 28 cross 28. Then I can do y train. So you can see that it is 60,000 only. और फिर कॉमा के बाद ब्लैंक है, that means it is a single integer.
ओके, इंटीजर वैल्यू है, लेकिन आप देख सकते हो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में सेम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है. यस, एनी डाउट स्टिल नाउ? हमने क्या किया, TensorFlow.keras.dataSets.mnist से हमने mnist का ऑब्जेक्ट बनाया. फिर हमने क्या किया, mnist.load डेटा किया. उस डेटा को हमने xtrain, ytrain, xtest, ytest के टपल्स में क्रिएट किया. फिर xtrain और xtest को डिवाइड बाय 255 किया इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज आवर डेटा. देन वी वेरीफाइड द शेप ऑफ xtrain, ytrain, xtest, ytest in order to verify the number of examples and the size of each image. Clear till now? Yes? Okay. So now what we are doing is we are creating a model using Keras. Okay. तो मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल टेंसरफ्लो. ठीक है, टेंसरफ्लो में और केरस में एक्चुअली इसी से मॉडल क्रिएट किया जाता है, इसी तरह से. फिर आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, TensorFlow.keras.models.sequential. ठीक है, अलग अलग टाइप के मॉडल्स रहते हैं, हम सीक्वेंशियल मॉडल यूज करना चाहते हैं. ओके, वी वांट टू यूज अ सीक्वेंशियल मॉडल. तो सीक्वेंशियल मॉडल में क्या होता है, एक लेयर दूसरे लेयर के बाद ही आता है. ओके, पैरेलल में आपके न्यूरल नेटवर्क के लेयर्स नहीं रहेंगे. दैट इज व्हाई इट इज अ सीक्वेंशियल मॉडल. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स. ओके, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, but we want a sequential neural network architecture. Okay, that is the most common category of architecture actually. So what are we doing? TensorFlow.keras.models.sequential. Then we are using the flatten layer. Okay, तो tf.keras.layers जो है, उस layers में अलग अलग टाइप की layers हमको अवेलेबल है. Okay, different kinds of layers are available to us, which do different things. अलग अलग पर्पस है. जैसे tf.keras.models.sequential है, वैसे डॉट सीक्वेंशियल की जगह डॉट रिकरेंट होगा या ऐसा होगा अलग अलग. ठीक है, तो बहुत अलग अलग टाइप के मॉडल्स है. वैसे भी लेयर्स भी अलग अलग टाइप के हैं. ओके, तो सबसे पहला टाइप का लेयर जो है वो है फ्लैटन लेयर. तो फ्लैटन लेयर क्या करता है कि 28x28 इमेज है, it is actually in the form of a matrix. Okay, 28x28 image जो है हमारा, it is actually in the form of a matrix. तो flatten layer क्या करेगा कि matrix को वो एक single array में convert कर देगा. So flatten layer is actually converting a 2D matrix into a 1D array. Flatten layer is converting a 2D matrix into 1D array. So what will happen? 1D array का साइज क्या रहेगा? 28 multiplied by 28. Okay, that will be the size of the 1D array. So if I open up the calculator, so it is 784. Okay, so 28x28 matrix will be converted into a 784 length 1D array. Okay, also libraries like TensorFlow, PyTorch, they do not work with actually matrices and arrays. Okay, they work with something called tensors. Okay, they work with tensors. So what are tensors? Tensors are basically vectors or arrays. Okay, n-dimensional vectors or arrays. Okay, so आपके पास 1 dimensional tensor हो सकता है, 2 dimensional tensor हो सकता है, 3 dimensional tensor हो सकता है, 7 dimensional tensor हो सकता है, and so on. Okay, so it is their own data type. Okay, 1D array को आप 1D tensor बोलोगे, 2D matrix को आप 2D tensor बोलोगे, 3D array को आप 3 dimensional tensor बोलोगे. Okay, so the data type that we are using in TensorFlow and PyTorch is tensors.
Okay, and they have created this data type so that calculations are easier to implement in their own library. मतलब behind the scenes implementation होता है ना, कोड जो होता है लाइब्रेरी का, उसमें उन्होंने सारा काम जो है वो टेंसर्स के हेल्प से किया हुआ है, ठीक है, so that we get an abstraction. Okay, we get an abstraction while we are using their library. आपको देखने नहीं जाना पड़ता कि फ्लैटन लेयर एक्चुअल में फ्लैटन लेयर का इम्प्लीमेंटेशन क्या है बैकग्राउंड में, उन्होंने खुद करके रखा है, हमको उसका कोड देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि बैकग्राउंड में वो टेंसर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में टेंसर के साथ काम कर रहे हैं। ये हमारा जो प्रैक्टिकल लिस्ट है उसमें एक प्रैक्टिकल में लिखा है आपको कि टेंसर फ्लो में आपको कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, प्लेस होल्डर्स, ऑपरेशंस, क्रिएटिंग ग्राफ एंड एग्जीक्यूटिंग ग्राफ ये करना है, लेकिन दिस वाज फॉर टेंसर फ्लो 1. ओके, एंड इफ यू वांट टू गो अचीव अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसर फ्लो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, राइट, लाइक क्रिएटिंग ग्राफ्स, क्रिएटिंग प्लेस होल्डर्स, बट फॉर बिगिनर्स दिस इज नॉट नेसेसरी. ओके, और टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च में एक मेन डिफरेंस ये है कि टेंसर फ्लो में ग्राफ जो रहते हैं वो स्टैटिक ग्राफ्स रहते हैं, पाइटॉर्च में ग्राफ जो है वो डायनामिक ग्राफ्स रहते हैं. ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेंसर फ्लो एंड पाइटॉर्च. अब ये ग्राफ क्या है? तो ग्राफ इज एक्चुअली हम जो मॉडल बना रहे हैं अभी, ठीक है, लेयर्स डॉट फ्लैटन, लेयर्स डॉट डेंस, लेयर्स डॉट ड्रॉप आउट, पूरा सीक्वेंशियल मॉडल हमने बनाया, तो उसका एक ग्राफ बनाता है टेंसर फ्लो. Okay, TensorFlow in the background creates a graph based on the model that we have defined. Okay, in TensorFlow such a graph would be static graph. In PyTorch such a graph would be a dynamic graph. Okay, अब ये static graph क्या है, dynamic graph क्या है, ये थोड़ा आपके लिए एडवांस है, so you don't need to worry about it. Okay, just understand कि थोड़ा implementation अलग है TensorFlow का और PyTorch. आपके लिए अभी क्या काम का है? आपके लिए काम का ये है कि केरास के हेल्प से आप सीक्वेंशियल मॉडल कैसे बनाओगे. Okay, for you what is important is creating a sequential model using Keras. So how are we doing that? We are saying tf.keras.models.sequential. उसके अंदर हम सारे लेयर्स डिफाइन कर रहे हैं इन एन एरे. तो सबसे पहला लेयर है फ्लैटन लेयर, ठीक है, उसमें इनपुट शेप क्या दे के रखा है हमने 28,28 बिकॉज दैट इज द साइज ऑफ ईच इमेज. देन वी हैव अ डेंस लेयर. तो डेंस लेयर का मतलब क्या हुआ? सिंपल न्यूरल नेटवर्क का एक लेयर होता है हिडन लेयर, उसको हम डेंस लेयर बोलते हैं. सिंपल न्यूरल नेटवर्क का जो लेयर होता है उसको हम डेंस लेयर बोलते हैं. तो ये डेंस लेयर में 128 न्यूरॉन्स आने चाहिए, ऐसा बोल रहा है. We are saying there should be 128 neurons in this hidden layer. उसके बाद तीसरा और एक्टिवेशन है वो हमने रेलू रखा है. Okay, so activation function we can have linear activation function, we can have sigmoid, we can have softmax, we can have relu, we can have leaky relu and so on. But it is good to have relu, okay, because that is the most commonly used activation function. Okay. Then you have a dropout layer, okay, with a dropout of 0.2. Okay, so ये dropout क्या है? तो dropout is a regularization layer. इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि आगे के लेयर में 128 न्यूरॉन्स हैं, okay, उसके प्रीवियस लेयर में डेंस लेयर में 128 न्यूरॉन्स, राइट. तो व्हेन आई से ड्रॉप आउट 0.2, इसका मतलब ये हुआ कि रैंडमली प्रीवियस लेयर के 20% न्यूरॉन्स का आउटपुट कंसिडर नहीं करना. रैंडमली प्रीवियस लेयर के 20% का न्यूरॉन्स का आउटपुट कंसिडर नहीं करना. सो वी आर ड्रॉपिंग दोज न्यूरॉन्स रैंडमली. 0.2 की जगह आप 0.1 कर सकते हो, 0.5 कर सकते हो, 1 कर सकते हो. 1 अगर करोगे तो प्रीवियस लेयर के आउटपुट का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कुछ भी आगे नहीं जा रहा है, ठीक है.
और 0 अगर आप रखते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रॉप आउट लेयर डालने का ही मतलब नहीं, क्योंकि सारे न्यूरॉन्स का आउटपुट फॉरवर्ड हो रहा है। ओके, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन बैक प्रोपोगेशन तो पता है ना आप लोगों को? यस, वो तो हमने 9th प्रैक्टिकल में देखा था, आगे के प्रैक्टिकल में। सो आई थिंक 0.2 से लेकर 0.3 तक ड्रॉप आउट बराबर है, उसके आसपास ही होना चाहिए। 0.1 से 0.3 इस रेंज में होना चाहिए ड्रॉप आउट। ओके, and finally after that we once again have a dense layer which is a final layer of our network, neural network, और उसमें हमने कुछ एक्टिवेशन नहीं लगाया। अगर कुछ एक्टिवेशन नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ लीनियर एक्टिवेशन फॉर्म। बाय डिफॉल्ट इट इज अ लीनियर एक्टिवेशन फॉर्म। ओके, सो दैट इज एक्चुअली द आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर में 10 न्यूरॉन रखें। 10 न्यूरॉन क्यों रखे? क्योंकि एमनिस्ट में 10 क्लास है। वी हैव 10 क्लासेस इन एमनिस्ट। ओके, एमनिस्ट में क्लासेस कौन से 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक, इसलिए 10 क्लास है तो 10 न्यूरॉन रखें आउटपुट लेयर। सो नाउ दिस इज क्रिएटिंग द मॉडल ऑब्जेक्ट। सो लेट अस रन दिस। Okay, so now that our model has been created, we need to do some predictions. Okay, but this prediction will be actually useless because we have not trained our model yet. Okay, हमने अब तक मॉडल को ट्रेन नहीं किया है। So यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? Predictions equals to model x train :1। इसका मतलब खाली एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, डॉट numpy मतलब उसको हम numpy में कन्वर्ट कर रहे हैं, numpy एरे के अंदर, और लेट अस प्रिंट दिस प्रेडिक्शन। ओके, सो दीज आर ऑल द प्रेडिक्शंस। तो आप देख सकते हो कि 10 प्रेडिक्शन होंगे। ओके, टॉप रो में 5, बॉटम रो में 5। ओके, सो ये जो है दिस इज एक्चुअली द लॉगरिथम। ओके, दिस इज एक्चुअली द लॉगरिथम। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टमैक्स के थ्रू पास करवाना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू से TensorFlow.nn which is neural networks .softmax of the predictions to NumPy. Okay, so now we are getting probability. तो probability के हिसाब से सबसे highest probability किसकी है? This one. So 4 has the digit 4 has the highest probability of being true. Okay, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मॉडल को ऐसा लग रहा है कि 4 जो है, पहला एग्जांपल जो है वो 4 है। बाकी सारे प्रोबेबिलिटी आप देख लो, 8%, 9.5%, 7.3%, 12.2% and so on. This has the highest probability 15.2%. कीप इन माइंड, अब तक मॉडल ट्रेन नहीं किया है। अब तक मॉडल ट्रेन नहीं किया है, ये मॉडल खाली क्रिएट किया है और सीधा सीधा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स दैट दिस इज अ रैंडम प्रेडिक्शन। ओके, दिस इज अ रैंडम प्रेडिक्शन, दिस इज नॉट एक्चुअल प्रेडिक्शन। ट्रेन करेंगे, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी सारी इंप्रूव हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि कोई भी एक डिजिट होगा ना, उसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगा और बाकी सारों का बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, ओके, नोट इट इज पॉसिबल टू bake the tf.nn.softmax function into the activation function for the last layer of the network. While this can make the model output more directly interpretable, this approach is discouraged as it is impossible to provide an exact and numerically stable loss calculation for all models when using a softmax output. That means कि यहाँ पे हम कॉमा करके एक्टिवेशन इक्वल्स टू softmax ऐसा कर सकते हैं. Okay, we can do this for the last layer, but they are advising it against us. Okay, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन में थोड़ा इश्यूज होंगे, इसलिए ऐसा मत करो. ऐसा कर सकते हो लेकिन मत करो. ठीक है.
So let us remove this. अगर 2 क्लास होते तो क्या करते? एक्टिवेशन इक्वल्स टू सिग्मॉइड. 10 क्लास है इसलिए एक्टिवेशन इक्वल्स टू सॉफ्टमैक्स. ओके, इतना तो पता है ना. Okay, then we are defining the loss function. Okay, so tf.keras.losses, बाद में क्या किया? स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी एंड फ्रॉम लॉजिट्स इक्वल्स टू ट्रू. तो ये जो है these are known as लॉजिट्स. ओके, सॉफ्टमैक्स अप्लाई करने से पहले जो आउटपुट है उसको हम लॉजिट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लॉजिट्स. सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई नहीं किया उससे पहले का जो आउटपुट है दैट इज लॉजिट्स. तो लॉस फंक्शन हमने स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी रखा है. अलग अलग टाइप के लॉस फंक्शन होते हैं. ओके, वन लॉस फंक्शन इज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. ठीक है, फिर देन यू हैव मीन स्क्वायर्ड एरर. ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ये रिग्रेशन के लिए लॉस फंक्शन है. स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी एंड सिंपली क्रॉस कैटेगरिकल एंट्रोपी, these are for classification. तो अलग अलग लॉस फंक्शन है. हम कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे? स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी. Okay, so now we can apply this loss function without training. Okay, once again remember कि सबसे पहला y train जो है उसका और प्रेडिक्शन जो है उसके बीच में लॉस कितना है. ओके, वो हम चेक कर रहे हैं कि प्रेडिक्शन क्या था. प्रेडिक्शन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. ठीक है, दिस वाज आवर प्रेडिक्शन. ओके, तो प्रेडिक्शन में और एक्चुअल y में कितना डिफरेंस है, दैट इज अवर लॉस. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल y एंड प्रेडिक्शन, दैट इज अवर लॉस. तो उसको लॉस फंक्शन में डाला और चेक किया कि क्या रिजल्ट आ रहा है. ओके, सो द लॉस इज 2.084. ओके, तो ये लॉस को हमको रिड्यूस करना है. वी वांट टू रिड्यूस दिस लॉस बाय ट्रेनिंग आवर मॉडल. सो नाउ वंस यू हैव डिफाइंड द मॉडल, स्टेप नंबर 1 क्या आएगा आपका? डिफाइन द मॉडल. स्टेप नंबर 2 क्या आएगा? डिफाइन द लॉस फंक्शन. ओके, स्टेप नंबर 3 कंपाइल द मॉडल. तो मॉडल डॉट कंपाइल. ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करना है? एडम ऑप्टिमाइजर. इसकी जगह आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर सकते हो. ठीक है, लॉस इक्वल्स टू लॉस फंक्शन दैट वी डिफाइंड अबव. मैट्रिक्स इक्वल्स टू एक्यूरेसी. ओके, एक्यूरेसी के अलावा दूसरे मैट्रिक्स भी है जैसे कि व्हाट वी से फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव. वो क्या था? प्रिसीजन एंड रिकॉल. राइट, तो प्रिसीजन रिकॉल ये सब आप डाल सकते हो. ठीक है, तो नाउ लेट अस कंपाइल द मॉडल. ओके, so model is compiled. Now last step is to fit the model. So model dot fit x train y train epochs equals to 5, मतलब 5 इटरेशन करने. Keep in mind that there are 60,000 images. 5 एपॉक भी बहुत ज़्यादा है. Okay, हमारे लिए अभी, because we do not actually have the time to train so much. So let me reduce the epoch to 2. Okay, to save our time. Let us run this. Okay, ये काफ़ी तेज़ी से हो रहा है बिकॉज इमेज साइज इज एक्चुअली टू स्मॉल. 28 क्रॉस 28 है ना, तो 5 एपॉक कर देने दो. चल,
ओके, सो यू कैन सी हियर कि एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव होते जा रही है और लॉस जो है वो कम होते जा रहा है। सो इनिशियली एक्यूरेसी 96% थी और लास्ट एपॉक तक 98% एक्यूरेसी हो गई थी। अब बारी आई इवैल्यूएशन की, तो हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट इवैल्यूएट एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, वर्बोज इक्वल्स टू 2। तो वर्बोज क्या है, कितना डिटेल में आउटपुट लिखना है, दैट इज व्हाट इज वर्बोज। वर्बोज अगर आप 0 रखोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएगा। वर्बोज इक्वल्स टू 1 थोड़ा बहुत डिटेल बताएगा, वर्बोज इक्वल्स टू 2 बहुत ज़्यादा डिटेल बताएगा। ओके, सो नाउ दिस शोज दैट टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी कितना है, 97.7, विच इज दिस एक्चुअली। सो ट्रेनिंग डेटा पे 98% एक्यूरेसी है, ओके, और टेस्टिंग डेटा पे 97.7। सो दिस इज आवर मॉडल इज नॉट ओवरफिटिंग, ओवरफिट नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सो यू कैन इमेजिन के sklearn के कंपैरिजन में कितना सिंपल है, राइट, यूजिंग keras and TensorFlow। इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल टू यूज keras and TensorFlow compared to sklearn for neural networks। Okay, ओके, यहाँ पे लास्ट में प्रोबेबिलिटी मॉडल क्रिएट किया है। तो दिस इज नथिंग बट सीक्वेंशियल मॉडल, फिर से एक नया सीक्वेंशियल मॉडल क्रिएट किया है, हमारा ओरिजिनल मॉडल प्लस लास्ट में सॉफ्टमैक्स डाल दिए, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी मॉडल। खाली एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया पीछे सॉफ्टमैक्स वाला, ताकि क्या हो, ताकि वो लॉजिक्स आउटपुट ना करे, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी आउटपुट करे। सो this is actually the same as saying activation equals to softmax। यहाँ पे activation equals to softmax लिखो, या यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक softmax लेयर ऐड कर दो, एक ही बात है, ठीक है। let us run this। Okay, so now it is outputting probabilities instead of logics। That's about it for the beginner quick start tutorial। And that was actually your 8th practical over। ठीक है, 8th practical आपका हो गया। अभी 10th प्रैक्टिकल जो है, implement a convolutional neural network using keras library for a face classification problem, create data set of faces of your 5 friends, use data augmentation technique to increase the data set। We will do this after 10 minutes। okay, 10 मिनट के बाद keras में और TensorFlow में CNN कैसे बनाना है वो आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। तब तक जो tensorflow.org/tutorials है, उसके अंदर बेसिक्स वाला जो कोलैब आपने देखा तो आप सब लोग देखो, ठीक है। 10 मीटिंग एंड मत करना, ठीक है, लीव मत करना, डोंट लीव द गूगल मीट, ओके। आई विल टीच यू अबाउट CNN आफ्टर 10 मिनट्स। लेफ्ट हैंड साइड यू हैव ऑल दिस लिस्ट कि कौन सा ट्यूटोरियल आपको करना है। तो यहाँ पे एडवांस के अंदर स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके। नाउ इज इट विजिबल? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द एडवांस सेक्शन यू हैव इमेजेस, उसके अंदर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क करोगे तो ये वाला आपको आएगा। हियर क्लिक ऑन रन इन गूगल कोलैब एंड दिस फाइल विल ओपन। ओके, सो दिस इज अ ट्यूटोरियल अबाउट
CNN. Okay, so first of all, let us import TensorFlow as TF. Import from TensorFlow.keras. Let us import datasets, layers, models, and so on. Okay, that is done. Now we are going to be using the CIFAR 10 dataset. Okay, so CIFAR 10 dataset है, उसमें 60,000 color images है, belonging to 10 classes with 6,000 images in each class. The dataset is divided into 50,000 training images and 10,000 testing images. The classes are mutually exclusive and there is no overlap between them. So just like we did in the last practical, we are going to say train images, train labels. So instead of saying X train, Y train, we are saying train images and train labels. So train images is X train. Train labels is Y train. Okay. Test images is X test and test labels is Y test. Okay. So once again we are creating tuple and we are saying datasets.cifar10.load data. Just like we did for mnist.load data, we are doing cifar10.load data. Once again we are normalizing the values. So we are dividing by 255 once again. यहाँ तक सेम है, ठीक है? mnist में जो किया था वही इसमें कर रहे हैं. So let us run this. Since these are color images, it is taking a little bit more time to download compared to mnist. Let us verify the shape. Okay, so we are going to say train images dot shape. Okay, so here you can see that there are 50,000 images in the training data set. Each image is 32 cross 32 cross 3. Okay, ये 3 है वो RGB का है. Like I said previously, since these are color images, we don't have 32 cross 32 cross 1, we have 32 cross 32 cross 3. That means for each channel of red, green and blue, we have 32 cross 32 pixels. तो ये 32 cross 32 cross 3 को अगर हम flatten करने जाएंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? 32 multiplied by 32 multiplied by 3. Okay, that would be the length of the flattened array. Okay, right. So now these are the names of the classes for the data set. तो airplane के images है dog, frog, horse, ship. तो ये सारे classes के images available है हमारे data set के अंदर. तो class names हमने दे दिए. फिर हम क्या कर रहे हैं? We are trying to plot each image. Okay, मतलब कितने इमेज प्लॉट कर रहे हैं? 25 इमेजेस प्लॉट कर रहे हैं. डेटा सेट में तो 50,000 इमेज है, लेकिन हम खाली 25 दिखा रहे हैं इन ऑर्डर टू विजुअलाइज कि हमारा डेटा कैसा दिख रहा है. ओके, एंड शो करने के लिए हम क्या करेंगे? मैटप्लॉटलिब का .im शो करके फंक्शन है. तो .im शो के हेल्प से आप कोई भी इमेज डिस्प्ले कर सकते हो. Okay, so from matplotlib.pyplot import import matplotlib.pyplot as plt, then plt.im show training images I. तो अभी I is going from 0 to 24. Okay, and x label मतलब x axis पे क्या लेबल आना चाहिए? तो जो ट्रेनिंग लेबल है corresponding to the image that should be plotted, and then we are plotting the figure. Okay, और टोटल फिगर साइज 10 क्रॉस 10 रखी है. वी हैव क्रिएटेड 25 सब प्लॉट्स, मतलब 5 के 5 क्रॉस 5 का ग्रिड है, उसमें 25 इमेजेस हम दिखा रहे हैं. लेट अस रन दिस. सो दीज आर ऑल द इमेजेस दैट आर पार्ट ऑफ द डेटा सेट. सो सैम्पलिंग किया है हमने बेसिकली. So this is a frog, this is a truck, this is a horse, right? Automobile, cat,
All the images are very blurry because it is just 32 क्रॉस 32. ओके 32 क्रॉस 32 पिक्सल कितना ब्लरी होगा आप सोच सकते हो. ठीक है, यूजुअली हम बकवास से बकवास कैमरा 4 मेगापिक्सल में कैमरा में फोटो लेंगे, फिर भी वो दैट वुड बी एटलीस्ट 360 पिक्सल्स, क्रॉस 360 पिक्सल्स, एंड दिस इज जस्ट 32 क्रॉस 32. ओके राइट. नाउ लेट अस क्रिएट आवर मॉडल. So we are saying model equals to models dot sequential. Okay, and this is another way to create the model. पिछली बार हमने क्या किया था, models equals to models dot sequential, फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे लेयर्स डाले थे. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, models dot add ऐसे कर करके लेयर्स ऐड कर रहे हैं. ओके, तो ये दूसरा तरीका है सीक्वेंशियल मॉडल क्रिएट करने का. या तो आप सारे एक साथ लेयर्स डाल दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, या एक एक करके डॉट ऐड करते करते लेयर्स ऐड करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहला लेयर ऐड किया है conv 2D. ओके, conv 2D. so conv 2D stands for convolutional 2D layer. ओके, convolutional 2D layer. 2D layer इसलिए क्योंकि हमारे पास इमेज है. ओके, दैट इज व्हाई 2D. अगर हमारे पास वीडियो होता, वीडियो डेटा पे काम कर रहे होते, तो conv 3D यूज करते. ओके, इफ यू आर वर्किंग विद वीडियो डेटा इट विल बी conv 3D. ओके, बट सिंस वी आर वर्किंग विद इमेज डेटा इट इज conv 2D. तो conv 2D में एक्टिवेशन हमने क्या रखा है, रेलू. इनपुट शेप क्या दिया है, 32 क्रॉस 32 क्रॉस 3. अब ये 32 का मतलब क्या है और ये 3,3 का मतलब क्या है. So this 32 is actually the number of filters in the convolutional layer. Okay, 32 is the number of filters in the convolutional layer. अभी आपको लेक्चर के अंदर convolution ऑपरेशन पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया? तो convolution ऑपरेशन में क्या होता है, आप एक इमेज लेते हो, उसके ऊपर आप एक फिल्टर अप्लाई करते हो और कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन करते हो. ठीक है, तो ऐसे 32 फिल्टर्स रखेंगे ये लेयर में. ओके, एंड दैट 3,3 दैट इज द साइज ऑफ द फिल्टर और द साइज ऑफ द कर्नल. फिल्टर को कर्नल भी बोलते हैं कई लोग. ओके, therefore that 3,3 is actually the size of the filter or size of the kernel. तो 3x3 वाले 32 फिल्टर्स अप्लाई करने हैं ये रो के, ये लेयर के अंदर. तो इसका आउटपुट क्या है, इनपुट शेप क्या है, 32 क्रॉस 32 क्रॉस 3. ओके, देन व्हाट विल बी द आउटपुट शेप, सेम रहेगा सर, सेम रहेगा. फिल्टर से जो वैल्यू चेंज करेंगे. ओके, अगर आप उसको उसके ऊपर हवर करोगे तो आपको बताएगा पहले फिल्टर्स है फिर कर्नल साइज है. ओके, आप स्ट्राइड दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो, अदर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, यहाँ पे हमने खाली नंबर ऑफ फिल्टर्स रखा है और कर्नल साइज प्रोवाइड किया है और कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया. ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैक्स पूलिंग 2D. मैक्स पूलिंग 2D पे आप हवर करोगे तो वो बताएगा कि हम पूलिंग साइज देख सकते हो उसके लिए. तो कितना साइज का फिल्टर यूज करना है पूलिंग करते समय, तो 2x2 यूज किया है. Once again conv 2D 6433 activation ReLU, once again max pooling and once again conv 2D. ठीक है, तो कितने लेयर ऐड किए हमने, 5 लेयर ऐड किए. उसमें से 3 है वो कॉन्वोल्यूशन लेयर है, 2 है वो कूलिंग लेयर, मैक्स कूलिंग लेयर. लेट अस रन दिस.
So our model is now defined. So we can see the summary of the model by doing model dot summary. Okay. So we have a sequential model. First of all we have convolution layer. Okay. उसमें number of parameters क्या है? 896. Output shape क्या है? 30, 30, 32. Why is this the output shape? लास्ट वाला जो रहता है ना, ये 32, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ फिल्टर्स. ओके, 32 फिल्टर है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में 32 आएगा. ठीक है. और ये जो 30 जो है, this will depend on the convolution operation itself. So 32,3 पे आप 3x3 वाले फिल्टर लगाओगे विदाउट एनी पैडिंग, विदाउट एनी स्ट्राइड. ओके, मतलब कोई स्ट्राइड नहीं है, कोई पैडिंग नहीं है, इसीलिए उसका शेप 30,30 आ रहा है. ठीक है. फिर मैक्स पूलिंग किया 2x2 का, तो ये कंडेंस होके 15-15 हो गया, मतलब आधा आधा हो गया. मैक्स पूलिंग में कोई भी पैरामीटर नहीं होता, सो 0 पैरामीटर. फिर वापस कॉन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई किया, 64 फिल्टर थे, इसलिए यहाँ पे 64 आएगा. ओके. और पैडिंग कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, 15-15 से 13-13 हो गया. फिर वापस मैक्स पूलिंग किया तो उसका आधा हो गया, 64 0 पैरामीटर्स. वंस अगेन नो पैडिंग इन द कन्वोल्यूशन लेयर, देयरफॉर 4 एंड नंबर ऑफ फिल्टर 64, तो 64 आएगा लास्ट में. Okay, total number of parameters is this, total number of trainable parameters is this. Okay, so this is the summary of our CNN model. Now what we need to do is we need to add a flatten layer. मतलब ये लास्ट में जो शेप आ रहा है 4,4,64, इसको हमें फ्लैटन करना पड़ेगा. फ्लैटन करने का मतलब ये है कि कन्वर्ट दिस इनटू अ वन डायमेंशनल एरे. ओके, कन्वर्ट दिस इनटू अ वन डायमेंशनल एरे. तो क्या हो जाएगा उसका शेप? 4 × 4 16, 16 × 64 कितना होता है? 1024. ओके, तो ये फ्लैटन करने के बाद हमारा शेप हो जाएगा 1024. ओके, बाद में वो 1024 हो गया, बाद में एक डेंस लेयर ऐड कर दिया विच हैज 64 न्यूरॉन्स एंड द एक्टिवेशन इज रेलू. एंड फाइनली a last output dense layer with number of neurons equals to 10, because there are 10 classes in our data set like horse, frog, truck, automobile, so on. So let us do this. Once again let us check the complete summary or the complete architecture of our model. ओके, सो नाउ यू कैन सी कि 4464 है, वो फ्लैटन करने के बाद 1024 हो गया. ओके, बाद में 64 और बाद में 10. ठीक है. अब वापस से क्या करेंगे? वापस से मॉडल डॉट कंपाइल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पूरा टेक्निक सेम है. क्रिएट मॉडल, ओके, क्रिएट मॉडल, कंपाइल मॉडल, फिट मॉडल. Create model, compile the model and fit the model. तो कंपाइलेशन में ऑप्टिमाइजर क्या रखा? एडम. लॉस फंक्शन सेम रखा, लास्ट जो था वो ही. ठीक है. और मैट्रिक्स में एक्यूरेसी रखा. और बाद में हम फिट कर रहे हैं, तो फिट में क्या किया है?
हिस्ट्री नाम के ऑब्जेक्ट में सेव कर दिया। ओके, सो मॉडल डॉट फिट ट्रेन इमेजेस ट्रेन लेबल्स कितने एपॉक्स करना है, 10 एपॉक करना है। वैलिडेशन डेटा कौन सा यूज करना है, टेस्ट डेटा एंड सॉरी टेस्ट इमेजेस एंड टेस्ट लेबल्स। Okay, so let us run this. आप एक्यूरेसी देख सकते हो इंप्रूव हो रहा है। Okay, so ultimately after 10 epochs our accuracy was 80%. Okay, so now let us plot this accuracy and validation accuracy using plt.plot history.history accuracy and history.history validation accuracy. Okay, so you can see that as the number of epochs is increasing, our accuracy is also increasing. That means that we can run this for a few more epochs and it would still not be overfitting. Okay, क्योंकि ये continuously increase ही हो रहा है, validation accuracy भी increase ही हो रहा है, तो अभी भी overfitting नहीं हो रहा है। आप 10 epochs तक और ट्रेन कर सकते हो इसको। ठीक है, आपका वैलिडेशन एक्यूरेसी कितना है, 71.94 फाइनल वैलिडेशन एक्यूरेसी। बेस्ड ऑन दिस मॉडल डॉट इवैल्यूएट के बेसिस पे, हेलो, मॉडल डॉट इवैल्यूएट के बेसिस पे आपका वैलिडेशन एक्यूरेसी कितना आ रहा है, 0.7194। Okay, so this was how you can train a CNN using TensorFlow and Keras. Okay, you can plot your validation accuracy, you can plot your training accuracy and so on. Okay, so this completes our practical number 10 as well. Okay, आपको खुद का डेटा सेट यूज करना है, ठीक है, भले आप फेस क्लासिफिकेशन डेटा सेट यूज ना करो चलेगा,
क्योंकि इतने सारे इमेजेस आप कहाँ से लाओगे, ठीक है। अगर आप 30-40 इमेज भी क्लिक करते हो तो भी मुश्किल। So you can bring your own data set, but you have to train a CNN. प्रैक्टिकल 11 और 12 का कोड शायद आपको क्लासरूम में पोस्ट कर दिया जाएगा, ओके, बिकॉज आई डोंट थिंक वी हैव द टाइम टू लर्न इट इन लैब। सो फॉर प्रैक्टिकल 11 एंड 12 मोस्ट प्रोबेबली आपको डायरेक्टली कोड दे दिया जाएगा इन योर गूगल क्लासरूम। क्लियर? एवरीवन हैप्पी? तो 10 प्रैक्टिकल के लिए जो लिस्ट में होगा डेटा सेट वही यूज़ करना है। 10 प्रैक्टिकल के लिए जो डेटा सेट हमें लिस्ट में दिया है वही यूज़ करना है। कोई भी डेटा सेट यूज कर सकते हो, कोई भी इमेज का, कोई भी इमेज क्लासिफिकेशन।